Good morning, students. I am Chauhan sir from Indo-Bharat International Public School. Now continue my chapter number 2 for class 10. Now polynomials. Now today we discuss about the relations between coefficients and its zeros. And also we discuss about division algorithm for polynomials. Okay, now first we discuss about the relations between coefficients and zeros of the quadratic equation, quadratic polynomial. Now quadratic polynomial is given ax square plus bx plus c. It is the quadratic polynomial because its degree, its power is the 2, highest power is the 2. Now coefficient, what is the meaning of coefficient? Now, coefficient of x square is a, where a is the constant. Now coefficient of x is the b and c is the constant term, because here x is given but power of x is the 0 and x power 0, that means 1. So c is called the only constant term. So there are 3 terms are given. First square term, second x term, and third is the constant term. Okay, now its zeros, suppose we let its zeros are, one zeros is the alpha and second zeros is the beta, where alpha and beta use for the its zeros. Zeros means values for x, because it is the quadratic polynomial, and for quadratic polynomial we can also find the 2 zeros always. So one is alpha and second is the beta. So what is the formulas for constant and its zeros? First formula, sum of the zeros. Sum of zeros means alpha plus beta, that is can be राइट इन द फॉर्म ऑफ माइनस बी अपॉन ए. आगे चलकर मैं इसको प्रूव करके भी बताऊंगा कि हाउ कैन वी फाइंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये कैसा है. लेकिन अभी अपन थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए डायरेक्टली, वैसे भी आगे चलकर अपन को याद आपको यही करना है, वेयर बी एंड ए आर कांस्टेंट एंड अल्फा एंड बीटा आर जीरोस. एंड सेकंड इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. डिनोमिनेटर्स में आपको हमेशा ए रखना है, वेयर ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, सो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन इट्स zeros आर गिवन? सो यू कैन आल्सो फाइंड द zeros आर. सपोज अभी तक हमने क्या किया, पॉलिनोमियल गिवन था और हमने zeros फाइंड आउट किया. नाउ दिस टाइम zeros are given, then you can also find the its polynomial, कि वो zeros किस polynomial के हैं. उसके लिए आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? वेरी सिंपल, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x मींस अल्फा प्लस बीटा इनटू x एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इनटू बीटा. तो मैंने सिंपल फॉर्म में सम और प्रोडक्ट को मैंने यहाँ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा की फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा है. नाउ we continue exercise number 2.2. First question we already discussed. Now second question हम discuss करने जा रहे हैं. Now in second question is given that to find the quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product its zeros are respectively 1 upon 4 and minus 1. अलग अलग जीरोस भी गिवन हो सकते हैं. अलग अलग जीरोस गिवन हो तो आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर लीजिए पहले. लेकिन यहाँ पर सम और प्रोडक्ट पहले से ही गिवन है, दैट मीन्स इट इज सम एंड इट इज प्रोडक्ट. सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज गिवन, प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज गिवन. So first we write the formula px. What is px? Px x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta. Okay. Now what is x square? X square as it is because the variable. Alpha plus beta is already given 1 upon 4. 1 upon 4 into x and plus alpha beta. What is alpha beta? Alpha beta is minus 1. Because sign is the negative, so write in minus. Now take multiply by 4. जो भी डिनोमिनेटर में उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और डिनोमिनेटर को आप हटा दीजिए, उसको आपको लिखना नहीं है. So here take the LCM is the
whole three numbers is the 4. So multiply by 4. It is 4x square minus x and plus minus minus 1. It is the answer. अब आप कहेंगे सर 4 कहाँ गया? अगर मैं इक्वल टू 0 करता हूँ और क्रॉस में इंटू करता हूँ तो 4 इंटू 0 इक्वल टू 0. तो यहाँ पर मैंने 4 को लिखा नहीं है. सिंपली राइट 4 स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस माइनस 1. दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल. आप चाहे तो इसके जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं. जीरो जब फाइंड आउट करेंगे तो ऑटोमेटिकली और सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आपको 1/4 और -1 ही आपको मिलेगा. तो ये तो मैंने फाइंड आउट किया फर्स्ट. एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं अपन. एक क्वेश्चन हम लेके चलते हैं. सपोज अलग अलग अल्फा और बीटा अगर आपको गिवन हो तो सपोज 1 0 is alpha equal to 2 and beta is equal to -3. मैंने अपनी तरफ से अपनी मर्जी से 1 is 2 and 1 is -3. So first we find the sum. What is sum? Sum is equal to alpha plus beta is equal to 2 minus 3 is equal to -1. Next product. Product means P. मैं यहाँ पे सिंबल यूज कर रहा हूँ. P is equal to alpha into beta is equal to 2 into -3 that means -6. ये इजीली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. अब यहाँ पे फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊंगा. Px is equal to x square minus sx plus p. अब आप कहोगे सर कभी आप अल्फा प्लस बीटा लिखते हो कभी अल्फा बीटा. ऐसा कुछ नहीं है. लिखा मैंने वही है. यहाँ पे मैंने s यूज कर लिया, यहाँ पे p. ये याद करने की फॉर्म में आपको इजी रहेगा. x स्क्वायर माइनस sx प्लस p दैट मींस इट इज द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. सिंपली राइट x स्क्वायर माइनस व्हाट इज s? s इज द -1. सो राइट हियर -1 x plus p. What is p? p is the -6. So what is the answer? Answer is x square minus plus x and -6. It is the answer. So it is the finally quadratic polynomial for the zeros 2 and -3. In first question already sum and product are given. So write the finally answer. But in second question separately alpha and beta are given. So first we find out alpha plus beta and alpha into beta. Means sum of product zeros and product of zeros. सम को मैंने s लिख दिया, प्रोडक्ट को मैंने p लिख दिया. यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह s यूज कर रहा हूँ, p की प्रोडक्ट की जगह मैं p यूज कर रहा हूँ. तो सिंपली फॉर्मूला क्या बन गया? अब आपका फॉर्मूला बन गया ये. पहले हमने फॉर्मूला लिखा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x एंड प्लस अल्फा बीटा. अब आप फॉर्मूले को इजीली लर्न कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. ये तो इजीली जब आपको जीरोस गिवन हो या सम गिवन हो, सम ऑफ जीरोस गिवन हो, तो आप इजीली उस जीरोस के लिए आप क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं. एक्सरसाइज नंबर 2.2 आपका कंप्लीट होता है. मींस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन हो तो यू कैन फाइंड आउट इट्स जीरोस एंड नाउ इट्स जीरोस आर गिवन देन यू कैन फाइंड आउट क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. ओके, नाउ देन नेक्स्ट इज वी स्टार्ट द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलीनोमियल. अभी तक आप लोगों ने छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं डिवीजन. Divide the one number by one. Divide the one number by one using the division algorithm is very simple. For example, suppose we divide the 7 divided by 3. तो आप क्या करते हैं? 7 then write here 3. 3 into 1 3, 3 into 2 6, 3 into 3 9. So we take the less than number 3 into 2. Right here it is the quotients and right here 6 और माइनस. ये साइन माइनस मैंने लिखा है समझाने के लिए. अपन माइनस ही करते हैं क्योंकि आगे भी हम यही करने जा रहे हैं ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो, ये कंफ्यूजन ना हो कि सर आप माइनस क्यों कर रहे हैं. 7 minus 6 equal to 1. अब ये नंबर इससे लेस हो गया तो अपन इसको बोलते हैं रिमाइंडर. तो क्या फाइंड आउट किया? इट इज कॉल्ड डिविडेंड, जिसको मैं कैपिटल डी ले रहा हूँ, और इसको हम लेते हैं डिवाइजर. और इसी फॉर्म को मैं क्या लिखूंगा? डिविडेंड 7
पहले हम लिखते हैं 7 इज इक्वल टू डिवाइजर 3 इंटू 2 6 एंड प्लस रिमाइंडर इज 1। आप देखो दोनों पार्ट इक्वल हो रहे हैं। 7 इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 1, 3 इंटू 2 पहले हम 3 इंटू 2 करेंगे 6 और 6 प्लस 1 7, दोनों इक्वल है। तो फॉर्मूला क्या बनता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंस एंड प्लस रिमाइंडर। ये एक फॉर्मूला बन जाता है आपका डिवीजन एल्गोरिथम के लिए। सेम फॉर्मूला हम यहीं यूज करेंगे, बट दिस फॉर्मूला यूज फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और फॉर लीनियर पॉलिनोमियल, फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक जरूरी नहीं है, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है जिसकी हाईएस्ट पावर 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, डरना नहीं है। यूज द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, इसलिए मैंने सिंपली पॉलिनोमियल्स लिखा है। यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। फर्स्ट एग्जांपल फॉर योर बुक, px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड gx इक्वल टू x प्लस 2। आपको डिवाइड करना है, तो ये आपको डिवाइड करना है px डिवाइड बाय gx। ये हमेशा आपको गिवन होगा। क्या लिखा मैंने? gx इज x प्लस 2 and right here 2x square plus 3x plus 1। यहाँ आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है बुक नोटबुक में, जहाँ पे रबर यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ रबर की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो आप स्टार्ट करते हैं। मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म आपको लेके आएंगे 2x स्क्वायर। यहाँ x प्लस 2 है, आपको x प्लस 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि फर्स्ट टर्म आपको मिल जाए 2x स्क्वायर। इजीली आप क्या कर सकते हैं? मुझे 2 चाहिए, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई बाई 2। अब x स्क्वायर भी चाहिए, x ऑलरेडी गिवन है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें? 2x। वेरी सिंपल। फर्स्ट टर्म 2 इंटू 1 2 एंड x इंटू x स्क्वायर। फर्स्ट टर्म आपको मिल गया। आगे क्या आता है ये नहीं देखना है। नाउ 2x मल्टीप्लाई बाई x एंड आल्सो 2x इंटू 2, 2 इंटू 2 4x। जो मिलता है वो आपको लिखना है। 2x स्क्वायर लाइक टर्म्स के साथ में लाइक टर्म, 4x x के साथ में यहाँ पे प्लस 4x, और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, ये माइनस और प्लस, ये माइनस। साइन चेंज होगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, सपोज दिस साइन इज द माइनस, तो आपको यहाँ पे प्लस लिखना है। प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस, साइन चेंज करना है सिंपली, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल होगी। अब मिलता क्या? माइनस 4x एंड प्लस 3x माइनस एंड प्लस 1। ये तब तक आपको डिवाइड करना है जब तक ये साइन दोनों की पावर सेम हो जाए, और इसकी पावर अगर लेस देन हो जाती है इससे, वहां पे आपको स्टॉप करना है, डिवाइड करना, वही आपका रिमाइंडर होगा। अभी पावर यहाँ 1 है और यहाँ भी पावर 1 है, यानी कि मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। x प्लस 2 वापस से मैंने लिखा है यहाँ x प्लस 2। इस बार फर्स्ट टर्म मुझे क्या चाहिए? माइनस x। x ऑलरेडी गिवन है और 1 यहाँ पे गिवन है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? ओनली मल्टीप्लाई बाई 2 1, सॉरी माइनस 1। So minus 1 into this one minus x, and this into this is the minus 2. So right here minus x and minus 2. Now right here this time sign is the positive, this time sign is the positive. आप कहेंगे सर ये पॉजिटिव क्यों हुआ? मैंने कहा ना साइन आपको चेंज करना है। This and this will be cut and plus 2 and plus 1 is the 3. So finally sorry, अपने एक चीज लिखना भूल गए। मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था? 2x। ये आपको लिखते हुए चलना है, ये नहीं भूलना है। ये जैसे मैंने गलती कर दी, ये गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ 2x से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट यहाँ माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे माइनस 1 भी लिखना है। ये आपको मिल गया क्वेश्चंस और ये आपको मिल गया रिमाइंडर। ओके, सो रिमाइंडर इज द 3, दिस इज द 2x माइनस 1 और दिस इज द x प्लस 2 एंड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये फाइनल आंसर, क्योंकि यहाँ x पावर 0 यानी कि इसकी पावर 0 इससे लेस देन हो गई। अब आपको यहाँ पे स्टॉप करना है, अब डिवाइड नहीं करना है। दिस इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स। इज द वेरी सिंपल। ये बात होगी एक सिंपल, मैंने आपको पहले सिंपल नंबर की बेसिस पे मैंने समझाया, और ये बात करते हैं अपन पॉलिनोमियल के लिए। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और लेके चलता हूँ फाइनल, और वो एग्जांपल के बाद में ये डिवीजन एल्गोरिथम आपका कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं और लेके चल रहा हूँ। नाउ दिस एग्जांपल इज 3x पावर
सॉरी माइनस एक्स पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 5, इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स एंड माइनस 1। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फाइनली माइनस एक्स क्यूब हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करें? माइनस चाहिए, माइनस ऑलरेडी है, एक्स क्यूब चाहिए, ओनली एक्स, तो आप एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए। दिस इंटू दिस माइनस एक्स क्यूब, दिस इंटू दिस प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहा प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इंटू दिस माइनस एक्स प्लस माइनस प्लस, दिस टर्म इज कैंसिल, and 3 and minus 1 means 2x square, and minus 3 and plus 1 minus 2x, and this number as it is plus 5, ये number as it is। वापस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब ऊपर से आपको कोई मतलब नहीं, जब आप ये लिख देते हो तो ये आपका नया क्वेश्चन बन जाता है। इस बार अब आपको क्या करना है, इस बार मुझे 2 चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। ओके, ये पॉजिटिव चाहिए नंबर, अगर ये नंबर पॉजिटिव चाहिए लेकिन यहाँ नेगेटिव है, तो आप यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर ऑलरेडी आएगा, -2 इंटू दिस वन माइनस माइनस प्लस, एंड दिस इज द 2x स्क्वायर। मल्टीप्लाई किससे किया हमने? -2, तो आपको यहाँ -2 लिखना है, और दिस इज द प्लस 2x स्क्वायर, दिस इंटू दिस -2x स्क्वायर। अब ये -2x एंड दिस इंटू दिस माइनस माइनस प्लस एंड 2, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट, पावर के सेम पावर का देखना, लाइक टर्म के साथ में लाइक टर्म, दिस इनटू दिस, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, इस कट, अगर ये भी कट हो रहा है तो दोनों एक साथ कट कर लीजिए, एंड 5 - 2 इज द +3। अब यहाँ पावर इससे लेस देन हो गया, यहाँ स्टॉप करना, इट इज रिमाइंडर एंड इट इज क्वेश्चंस। दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने आज आपको एक तो रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट एंड जीरोस हमने डिस्कस किए, जिसमें हमने जीरोस गिवन हो और आपने फाइंड आउट किया पॉलिनोमियल, और आपको एक डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स भी मैंने डिस्कस कर लिया। ये पावर 4 के लिए भी हो सकता है, 5 के लिए भी हो सकता है, डिस्कस जरूर करना। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, नाउ गुड डे।